السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان، گرداب۔ گرداب قسط نمبر 31۔ الیاسا نہیں آیا آج بھی؟ جا کر بول دینا اس کے ماں پیو کو، اگر اس نے ایک دن اور بھی مزید چھٹی کی نا تو میں اس کی وہ دھنائی کروں گا کہ کھال اتر جائے گی اس کی۔ جس دن سے بہن مری ہے نا اس کی، ادھر کا رخ ہی نہیں دکھاتا، لگتا ہے بہن کے ساتھ خود بھی قبر میں جا کر دفن ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسے اپنے گھر میں ترنے والے ملتے ہوں گے نا آج کل، اس لیے ادھر کا رخ نہیں کر پاتا۔ جب گھر میں فاقے پڑتے ہیں تو دوڑ دوڑ کر میرے پاس چلا آتا ہے۔ وہ بہت قہرناک لہجے میں بول رہے تھے، مگر پھر شاید اس نے اپنے سامنے بچوں کی توجہ دروازے کی طرف محسوس کر لی تھی اور خود بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ باقاعدہ ملاقات نہ ہونے کے باوجود شہریار اور عبد المنان کے چہرے اس کے لیے نامانوس بالکل نہ تھے۔ عرس کے موقع پر وہ ان لوگوں کو غور سے دیکھ چکا تھا۔ اب جو اس نے انہیں وہاں موجود پایا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، میری خوش قسمتی کہ آج آپ لوگ اس جگہ آئے اور اس جگہ کو رونق بخشی۔ اس کا انداز اچانک سے فدویانہ ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے قدموں میں بچ جائے۔ ہاتھ ملانے کے لیے اس نے شہریار کا ہاتھ تھاما تو پھر چھوڑ ہی نہیں رہا تھا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنی مسند تک لے گیا۔ تشریف رکھیے، یہاں پر تشریف رکھیے۔ شہریار کا ہاتھ تھامے تھامے اس نے زبردستی اسے مسند پر بٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ نہیں مولوی صاحب، نہیں، میں نیچے ہی بیٹھوں گا۔ بچے قرآن مجید لے کر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اوپر بیٹھنا مناسب نہیں لگتا۔ وہ مولوی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر کھسیاتے ہوئے مولوی صاحب نے بھی پیروی کرنی شروع کی اور خود اس کے قریب ہی زمین پر فرش پر بیٹھ گئے۔ آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے زحمت دی ہوتی جناب، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نہیں مولوی صاحب، آنا تو مجھے ہی تھا، بس وقت کی قلت کی وجہ سے اب تک آ نہیں سکا تھا، لیکن اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں آپ سے خود ملاقات کروں۔ مولوی کا خوش آمدانہ انداز اسے کچھ کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے عزت سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ عزت سے بات کر رہا تھا۔ خاص طور پر یہاں آتے ہی اس نے مولوی کی جس طرح کی زبان سن لی تھی اور اسے جس انداز میں بیٹھے دیکھ لیا تھا، یہ دیکھ کر اس کا دل بہت زیادہ خراب بھی ہوا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ اس قسم کے دیہی ماحول میں مولویوں وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ خود ذرا تکبر میں آ جاتے ہیں اور اوپر بیٹھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ حکم کیجئے جناب، آپ کے حکم کی تعمیل کر کے مجھے دلی خوشی محسوس ہوگی۔ حکم نہیں جناب، بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ 2 دن بعد گاؤں میں اسکول کے افتتاح اور مرکزی صحت کے سنگ بنیاد رکھنے کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہونا چاہیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تقریب میں تشریف لا کر تلاوت قرآن پاک کر دیجیے گا۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے وہ خود چل کر مولوی کے پاس آتا، لیکن مسجد کے مولوی کی گاؤں کے ماحول میں اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس سے تعلقات بہترین رکھنے کا خواہش مند بھی نظر آتا تھا۔ دوسرے اسکول اور مدرسے کے درمیان پائی جانے والی کھینچا تانی کو بھی اس موقع پر ختم کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ خود چل کر یہاں تشریف لایا تھا۔ آپ کہتے ہیں تو میں ضرور آ جاؤں گا، ویسے ذاتی طور پر میں اسکول کو پسند نہیں کرتا۔ نہ جانے کون ہیں یہ لوگ جو انگریزی تعلیم کے ذریعے گاؤں کے سیدھے سادھے اور عام سے لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ مولوی صاحب نے فوراً ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں مولوی صاحب، اسکول میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی جس سے بچوں کے مستقبل کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔ آج کے دور میں
बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम हासिल करवाना बहुत जरूरी है। आज के दौर की क्या बात, सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर ने तो बरसों पहले इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है तो दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी। शहरियार ने उन्हें फौरन माजी और मुस्तकबिल दोनों के हिसाब से दलील दे दी, लेकिन मौलवी साहब इतनी आसानी से कायल होने वाला बंदा तो न था। उसकी दलील सुनकर फौरन भड़क उठा। उस वक्त की तो बात छोड़े ना जनाब, वो वक्त अलग था। तब हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब तो हम किसी किस्म की आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे। अब सब कुछ हमारे हक में है। अपने मुल्क में अपनी मर्जी की तालीम अपने बच्चों को दें। क्यों, गलत कहा या सही? वक्त अभी भी नहीं बदला मौलवी साहब, बिल्कुल नहीं बदला। अभी हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं हुई। अभी हमें अपने लोगों के जहनों और बच्चों को आज़ाद करवाना है। लेकिन अभी इस सारी बहस को जाने दीजिए और मुझसे ताउन कीजिए कि मदरसे के औकात कुछ इस तरह से तय कर लिए जाएं कि मदरसे और स्कूल के औकात के दरमियान तसादुम बिल्कुल ना हो और बच्चे दोनों तरफ आराम से जा सकें। शहरियार ने बहस के बजाय अपने मतलब की तरफ आना ज्यादा मुनासिब समझा और चुपचाप अपनी बात मुकम्मल कर ली। मदरसे के औकात बदलना तो बहुत मुश्किल काम होगा। आप स्कूल के औकात में ही कुछ तब्दीली कर लें तो बेहतर रहेगा। मौलवी साहब के जवाब से जाहिर था कि वो जितनी फर्माबरदारी और ताबेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, दर हकीकत उतना था नहीं जितना वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी लिहाज से शहरियार के सामने बिछे बिछे जा रहे थे। यकीनन वो उन लोगों में से थे जो पेट में दाढ़ी रखते थे। इस मामले को तो बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं। अभी चौधरी इफ्तिखार साहब से भी हमें मुलाकात करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। मौलवी का अंदाज देखकर उसने मजीद उसे मुंह लगाना बिल्कुल मुनासिब न समझा और अपनी जगह से तेजी से खड़ा हो गया। अब्दुल मनान ने भी उसकी पैरवी की। अरे भाई, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? कुछ चाय पानी तो पीते चले जाएं। मौलवी जीरक आदमी था। उसके मिजाज की बरहमी पहचान गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। नहीं मौलवी साहब, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं। वो बावजूद इसरार के 1 मिनट भी वहाँ मजीद ना रुका और आगे बढ़ गया। आपने तो बाला ही बाला सारे प्रोग्राम तय कर लिए जनाब। आखिर मैं इस इलाके का नुमाइंदा हूँ। पीराबाद मेरी मिल्कियत है। यहाँ कुछ भी करने से पहले आपको मुझे इत्तला तो देनी चाहिए थी ना जनाब। चौधरी इफ्तिखार की हवेली पहुँचने के बाद उसने उसे तकरीब के हवाले से दावत दी तो चौधरी साहब का मुंह बन गया और फिर वो शिकवा भी करने लगे। हम आपको इत्तला देने के लिए ही तो आए हैं चौधरी साहब, आप क्यों खफा हो रहे हैं? असल में सारा प्रोग्राम बड़ी उजलत में तय हुआ, इसलिए पहले से आपसे बाकायदा कोई मीटिंग करने की मोहलत भी न मिल सकी। बहरहाल हमें आपकी इस इलाके में अहमियत का बहुत ज़्यादा एहसास है, इसीलिए तो मैं खुद आपको दावत देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आया। बेशक स्कूल और मरकज़ सेहत की तामीर सरकारी ज़मीन पर हो रही है और फंड्स भी हमें कहीं और से मिले हैं, लेकिन आपकी अहमियत का इनकार थोड़ी किया जा सकता है। हम क्यों इनकार करेंगे आपसे? आप तशरीफ़ लाएंगे तो तकरीब में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी हैसियत तकरीब में मेहमान के बजाय मेज़बान की होगी। आखिर आप पीराबाद के चौधरी हैं, यहाँ के मालिक। उसने बहुत नर्म लहजे में चौधरी की बात का जवाब दे दिया। उसकी अहमियत भी तस्लीम की, लेकिन ये जताना बिल्कुल ना भूला कि बेशक पीराबाद की बेशतर ज़मीन उसकी मिल्कियत है, लेकिन जिन मकामात पर वो अपने मंसूबों पर काम कर रहा था वो ज़मीन सरकारी मिल्कियत थी और उसे इस सिलसिले में चौधरी की इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत भी ना थी। चौधरी इफ्तिखार हमेशा बदउन्वान अफसरों की मदद से स्कूल वाली ज़मीन पर अपनी मिल्कियत जताकर बहुत अरसे तक स्कूल की तौसी का काम रोकता चला आ रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह से वाकिफ था कि हकीकत में ज़मीन सरकार की ही है और शहरियार ये बात साबित कर रहा है। इसीलिए इस ज़मीन पर से अपनी मिल्कियत के दावे से चुपचाप दस्तबरदार हो चला था। अगर उसे माजी में इस बात का ख्याल आ जाता कि आने वाले वक्त में कोई ऑफिसर उसके खिलाफ भी चल सकता है तो वो किसी तरह से इस बात का बंदोबस्त भी कर डालता कि ज़मीन उसके नाम ही मुंतकिल कर दी जाए, मगर अब तो सिर्फ अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गया था। अपनी जल्दबाजी की आदत पर काबू पाने की कोशिश कीजिए जनाब।
जवानी के जोर में आप जरा जरूरत से ज्यादा ही जोश से काम लेते हैं, लेकिन जोश में भी कभी कभी आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाया करता है। अभी पिछले दिनों आप अच्छे खासे जख्मी हुए। अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी बख्शी। खुदा न खास्ता इस वाक़े में आपको कोई बड़ा नुकसान भी तो पहुंच सकता था। चलें खैर, अगर बचत हो गई है, लेकिन फिर भी ख्याल तो करें। बेचारे गरीब पुलिस वाले तो मारे गए ना। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ उनका सुनकर। तिलमिलाहट को छुपाकर चेहरे पर मुरब्बियाना मुस्कुराहट सजाते हुए उसने शहरियार को कुछ इस तरह लताड़ने की कोशिश की कि वो चुपचाप यहाँ से खिसक जाए। उसकी आंखों की मुस्कुराहट बड़ी मानीखेज थी, जैसे वो शहरियार को जता रहा हो कि देखो बच्चू, बड़े तुर्रम खान बनते थे ना तुम, कैसा बेवकूफ बनाया था मैंने तुम्हें। पुलिस वालों के मारे जाने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन मेरे नजदीक वो लोग काबिले फख्र हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने फर्ज की अदायगी करते हुए शहीद हुए। उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा और कातिलों को एक दिन इबरतनाक अंजाम से दोचार भी होना पड़ेगा। वो खुद पर बहुत जबर करते हुए वहां आया था और ऐसी कोई बात छेड़ने का इरादा नहीं रखता था जिससे उसकी कल्बी कैफियत का इजहार हो जाए, लेकिन चौधरी इफ्तिखार खुद ही इस बात को इस रुख पर ले गया और ऐसी गुफ्तगू कर ली जिसमें तलखी का अंसर शामिल हो गया। मेरे ख्याल में हमें किसी तकलीफ दे मौजू पर कोई गुफ्तगू करने के बजाय फिलहाल तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए। ये पहला मौका था कि पीराबाद में ऐसी कोई तकरीब होने जा रही थी। इससे पहले अफसरान उर्स में शिरकत की गर्ज से यहाँ आते जाते रहे थे, लेकिन उनकी वो आमद जाती नौयत की आमद थी और यहाँ ये एक सरकारी मकसद सामने था। जनरल तौहीद को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। बेशक मौजूदा हुकूमत में उनके पास कोई बड़ा ओहदा तो न था, लेकिन उनकी अहमियत से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता था। पिछली हुकूमत में वो सूबाई वजीर यानी वजीर इत्तलात और नशरियात थे। अब भी उनके हुकूमती हलकों में गहरे ताल्लुकात और रवाबित मौजूद थे। मीडिया वाले भी इस अहम मौके पर उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी समझते थे। मौजूदा वजीर खजाना से उनके करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि रिश्तेदारी थी। अगर यहाँ से लोग खुश होकर चले गए तो हम कम अज कम पीराबाद के लिए तो काफ़ी मराहत हासिल कर सकते हैं ना। मामलात को तलखी की तरफ जाता देखकर अब्दुल मन्नान ने गुफ्तगू में मदाखलत की और जल्दी जल्दी बोलते हुए उन दोनों को मौके की नज़ाकत का एहसास दिलाने लगा। हम तो पहले भी किसी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करते जनाब। जनरल साहब बेशक सरकारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाएंगे, लेकिन पीराबाद आने के बाद उनकी हैसियत सरकारी मेहमान के बजाय हमारे जाती मेहमान की ही होगी। आप लोग जैसे चाहें इंतजाम कर लें, लेकिन मेहमानों का खाना हवेली में ही तरतीब दिया जाएगा। आप बस मुझे मेहमानों की तादाद के बारे में बता दें, बाकी इंतजामात हो जाएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। शहरियार का अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। अपनी अहमियत और फिर आला ओहदेदारान से ताल्लुकात बढ़ाने का ये मौका चौधरी इफ्तिखार किसी तरीके से ज़ाया नहीं कर सकता था। इसलिए उसने खुशी खुशी अपनी तमाम तर जिम्मेदारी कबूल कर ली। जैसे आपकी मर्जी चौधरी साहब। वैसे तो हमने इस सिलसिले में बहुत सारे इंतजामात खुद कर लिए थे, लेकिन आपकी मर्जी। आप इस मौके पर मेज़बानी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अपना मूड बहाल करते हुए उसने फौरन ही चौधरी साहब की ऑफर कबूल कर ली। मेरी पेशकश कबूल करने का बहुत शुक्रिया एसी साहब। अगर आप इनकार कर देते तो मुझे बहुत अफसोस होता। असल में मेहमान नवाजी हमारी पुरानी रिवायत है और चाहे कोई दुश्मन भी चलकर हमारे करीब आ जाए तो हम उसकी खातिर मदारत ज़रूर करते हैं। चौधरी जिस वक्त ये जुमले कह रहा था, ऐन उसी वक्त एक मुलाजिम लवाजमात से भरी ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। उस मुलाजिम को नजरअंदाज करते हुए शहरियार एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अच्छा चौधरी साहब, अब इजाजत दीजिए। शहरियार ने चौधरी साहब की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अब्दुल मनान भी उसकी पैरवी में अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। इस तरह अचानक कहाँ चल पड़े जनाब? एसी साहब, कुछ चाय पानी तो पीते चले जाएं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं। आपकी मेहमान नवाजी से फैज़याब होने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। प्लीज अब हमें इजाजत दीजिए। चौधरी के रोकने के बावजूद वो मजीद वहां
बैठने पर बिल्कुल राजी ना हुआ। ये तो उसकी उजलत पसंदी थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी, वरना दिल कतई तौर पर राजी ना था। इस शख्स से बात करने के लिए तो वो कभी तैयार भी ना होता था, लेकिन फिर भी वो मुरव्वत के बाइस यहाँ चला आया। लेकिन कुछ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसीलिए चौधरी के बहुत रोकने के बावजूद भी तेजी से बाहर निकल पड़ा। बाहर ड्राइवर गाड़ी लिए उनका मुंतजर खड़ा था। उन लोगों के बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। हवेली से निकलकर वो लोग गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ गामजन हो गए। ड्राइवर, जरा गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ को ले चलो, उसने अचानक ही ये हुक्म दे दिया, जिसकी तामील कर ली गई। वहां पहुंचने के बाद वो गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो अब्दुल मनान और ड्राइवर भी चुपचाप उसके साथ हो लिए। कब्रिस्तान ज्यादा बड़ा बिल्कुल ना था। चंद पक्की कब्रों के सिवा वहां ज्यादातर कब्रें कच्ची ही थी। उन कब्रों के दरमियान उन लोगों को फौरन ही करीब करीब बनी 2 नई कब्रें भी नजर आ गईं। कब्रों पर कतबे मौजूद ना थे। वो लोग अंदाजा कर सकते थे कि ये कब्रें थोड़े दिनों के वक्फे से मरने वाली उन 2 सगी बहनों की हैं जो इस दुनिया में अपने हिस्से की खुशियां वसूल किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गईं। दोनों में से एक कब्र की मिट्टी ज्यादा नई थी, जिससे मालूम होता था कि ये महबानों की कब्र है। शहरियार ने उस कब्र के सरहाने खड़े होकर दुआए मगफिरत के लिए हाथ बुलंद कर लिए। अब्दुल मनान और ड्राइवर ने भी उसका साथ दिया। तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह हाथ बुलंद करके बंद आंखों के साथ वो दुआ मांगता रहा। दुआ के इख्तिताम पर उसने मुंह पर हाथ फेरकर आंखें खोली तो मलगजे कपड़ों में मलबूस दुबला पतला और सांवली रंगत वाला एक शख्स दूसरी कब्र के पास खड़ा उसे अपनी तरफ देखता नजर आया। उस शख्स के चेहरे पर गहरे दुख और रंज के तासुरात नजर आते थे। उसे अपनी तरफ गौर से देखता वो हैरान परेशान उसके करीब चलने लगा। वो शख्स भी उसके करीब आ गया। आप इस जिले के एसी साहब हो ना? उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसने सवाल किया, जिसका जवाब उसने महज सर हिलाकर दिया। अभी अभी वो खुद गहरे दुख की कैफियत से गुजर रहा था, इसलिए उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ अरसा पहले की बात है कि अपने पास दरखास्त लेकर आने वाली 9 उम्र लड़की की कब्र के पास खड़े होकर उसके लिए दुआए मगफिरत करने का तजर्बा शहरियार के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह साबित हो रहा था। अभी तो वो उस लड़की के लिए अपने दिल में पैदा होने वाली बेनाम सी मोहब्बत का तज्जिया भी ना कर पाया था कि वो अचानक से ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो यकदम ही बहुत सरगर्म होकर उसके दुख के लिए उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा था और सबसे पहले पीराबाद में अपने मंसूबों पर काम का आगाज भी कर दिया था। सुना है कि आप हमारे पिंड में अस्पताल बनवाते हैं। यह आप लोगों का हम लोगों पर बहुत 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 एहसान होगा। दूसरी तरफ से तस्दीक हो जाने पर वो शख्स उसका हाथ थामकर बड़ी आजिज़ी से बोला और फिर फूट फूट कर रो दिया। शहरियार के इशारे पर ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसे तेजी से संभालना चाहा। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो शख्स संभला तो उसने उससे पूछा, मैं अनवर हूँ जी, ये मेरी घरवाली की कब्र है। ब्याह के 2 बरस बाद हमें खुशी की खबर मिली थी, पर जाने अचानक क्या हुआ कि इस बेचारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उधर पिंड में कोई डॉक्टर तो था नहीं, दाई ही टूने टोटके करती रही, पर जब कोई फायदा ना हुआ तो उसने कह दिया कि अपनी घरवाली को शहर के किसी बड़े अस्पताल ले जाओ। शहर ले जाने का कोई बाकायदा इंतजाम बिल्कुल ना था। मैंने मुंशी जी की बहुत खुशामद की कि हवेली की किसी खातून को मेरी घरवाली के साथ अस्पताल पहुंचा दे, पर गरीबों की कौन सुनता है जनाब जी। मैंने भाग दौड़कर बहुत मुश्किल से जब सवारी का बंदोबस्त किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारी मेरी घरवाली रास्ते में तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू जारी थे। मुझे इन हालात के बारे में मालूम है अनवर। मुझे मालूम है कि इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से अक्सर इस किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि पीराबाद समेत इर्द गिर्द के छोटे बड़े देहातों में भी जल्द अज जल्द ऐसे अस्पताल कायम कर दिए जाएंगे जहां लोगों का बर वक्त इलाज किया जा सके। तुम्हारी बीवी की मौत का सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस है। बस अब तुम दुआ करो कि जल्द यहाँ अस्पताल बन जाए ताकि तुम्हारी किसी और बहन को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े।
शहरयार ने उसका शाना थपकते हुए कहा तो उसने खुद पर काबू पाते हुए हथेली की पुष्ट से अपने आंसू पोंछ डाले और जरा जोश से बोला, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताएं। अभी तो ऐसी कोई खिदमत की जरूरत पेश नहीं आती। वैसे तुम ये बताओ कि काम क्या करते हो? उसने यूं ही पूछ लिया। काम मुझे सारे आते हैं जनाब, बड़ा दम है मेरे बाजुओं में। मुंशी मुझे जिस काम पर भी लगा देता है मैं आराम से कर लेता हूँ। आपको कभी किसी काम की जरूरत हो तो जरूर आजमा के देखिएगा। वो सीना तान कर फखर से बोला तो शहरयार पुरख्याल नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। ये दुखी आदमी जो चौधरी के मुंशी के खिलाफ दिल में शिकवा भी रखता है, उसके लिए अचानक से कारामद भी तो साबित हो सकता था। शहरयार चुपचाप उसे देखता चला गया। ठीक है अनवर, अभी तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। तुम ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहना। वो अनवर का शाना थपथपाते हुए कब्रिस्तान से निकलने वाले रास्ते की तरफ को चल पड़ा। बहुत से काम होने के बावजूद उसका जहन अनवर के बारे में ही सोच रहा था। अगर अपने दावे के मुताबिक वाकई वो कारामद आदमी साबित होता है तो उससे कई अहम काम लिए जा सकते थे। आखिरी जुमला तहरीर करने के बाद उसने कलम बंद करके कलमदान में रखा तो बेहद मुतमईन और खुश नजर आता था। आज की कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी। मरकज़ सेहत का संगे बुनियाद रखने के बाद जनरल तौहीद अपने साथियों के साथ स्कूल की इमारत में जरूर आए थे। उन्होंने स्कूल की छोटी सी इमारत को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया था और यकीन दहानी करवाई थी कि वो स्कूल की इमारत में तौसी के सिलसिले में भरपूर किरदार अदा करेंगे और एक दिन ये छोटा सा स्कूल हाई स्कूल और कॉलेज के दर्जे तक जरूर पहुंचेगा। उन्होंने बहुत मौसर अल्फाज में गांव के लोगों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करने की भी कोशिश की थी। तकरीब में शरीक गांव वालों के पुरजोश रद्द-ए-अमल ने जाहिर किया था कि वो उनकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आते हैं। तकरीब में चौधरी इफ्तिखार के अलावा इर्द गिर्द के दूसरे जमींदारों ने भी शिरकत की थी और नाचार ही इस तालीमी प्रोग्राम को सराहा था। मोबाइल कंपनी वाले भी इस तकरीब में बड़े सरगर्म नजर आते थे। मीडिया कवरेज भी बहुत ज्यादा थी और फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पब्लिसिटी मुहिम पर बहुत ज्यादा काम चलाया था। लोगों को मोबाइल के इस्तेमाल की तरफ राग़िब करने के लिए उन्होंने अपनी मोबाइल कंपनी की सिम के साथ चंद मोबाइल सेट मुफ्त तकसीम कर डाले थे। मजमूई तौर पर तकरीब बहुत कामयाब रही थी और इस वक्त उसने इस तकरीब से मुताल्लिक रिपोर्ट भी लिखकर मुकम्मल कर ली थी। इस रिपोर्ट को इतवार की अशात में शामिल होना था और ये रिपोर्ट उसने एक फीचर की शक्ल में लिख डाली थी, जिसमें पीराबाद के साथ साथ इर्द गिर्द के दीगर देहातों के मसाइल का अहाता करते हुए उन तमाम इलाकों में फरोग़ तालीम की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए मुखय्यर हजरात को इस कार खैर में शामिल होने की दावत भी दे डाली थी। अखबार बीन तबके में ए मंशा का नाम मोतबर था और वो उसे एक हक परस्त कलमकार की हैसियत से पसंद करते थे, इसलिए इस बात का अच्छा खासा इम्कान था कि वो उसकी अपील पर जरूर गौर फरमाएंगे। वो इस मामले में इतना पुरजोश था कि पिछले 2 दिन की मुसलसल मेहनत और आज की तकरीब की मसरूफियात की वजह से होने वाली थकन को कतई नजरअंदाज करके कलम थामकर दोबारा बैठ गया था। मुनीब की नींद खराब ना हो, इस ख्याल से उसने ट्यूबलाइट बंद करके सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी में अपना काम मुकम्मल कर लिया था। मुसलसल झुके झुके लिखते रहने की वजह से अकड़ जाने वाली गर्दन का तनाव जरा कम हुआ तो वो अपनी जगह से उठकर उस खिड़की तक चला गया जो बाहर की तरफ को खुलती थी। खिड़की खोलकर उसने बाहर झांका। बाहर रात का मखसूस अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। बस सिर्फ चांद की रोशनी नजर आती थी, जिसमें वो स्कूल का हेवला और इर्द गिर्द का धुंधला सा मंजर देख सकता था। इर्द गिर्द के मंजर से तो उसे इतनी ज्यादा दिलचस्पी बिल्कुल न थी, लेकिन स्कूल उसके ख्वाबों की शाहराए ताबीर पर आने वाला पहला संगे मील था, इसलिए वो उसे बहुत पुरजोश नजरों से तकता चला जा रहा था। मुश्किल से 2 मिनट ही गुजरे थे कि मंजर में पेश आने वाली एक मुतहरिक तब्दीली ने उसे फौरन चौंका दिया। वो जो बहुत ज्यादा खुश था, गौर से देख रहा था कि वो 2 आदमी हैं जो आसपास मोहतात नजरों से देखते हुए स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। आफताब ने खिड़की तक जाने से कबल टेबल लैंप बुझा न दिया होता ना, तो वो खुली खिड़की से आने वाली रोशनी की वजह से उसकी तरफ भी मुतवज्जो हो सकते थे, लेकिन
उस वक्त वो उसे न देख सके। रात के इस पहर मशकूक अंदाज में स्कूल की तरफ जाने वाले उन दो अफराद को देखकर उसका माथा ठनका, लेकिन वो अंदाजा नहीं कर सका था कि वो लोग कौन हैं और क्यों उस तरफ चले आए। उन दोनों अफराद में से एक ने अपने हाथ में कुछ थामा हुआ था। अंधेरे में उभरे हुए उस थैले के खाके से यही अंदाजा लगा सका था कि वो कोई केन नुमा शय है। वो दोनों अफराद साथ साथ चलते हुए नए तामीर शुदा स्कूल के कमरों में से एक के दरवाजे पर आकर तेजी से रुक गए। दरवाजे के करीब पहुंचकर जिस आदमी ने केन थामा हुआ था वो शख्स जमीन पर बैठ गया, जबकि दूसरा खड़ा रहा। खड़े हुए शख्स की पोजीशन ऐसी थी कि बैठने वाला शख्स आफताब की नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया। वो नहीं देख सका था कि उस शख्स ने कमरे के दरवाजे के करीब बैठकर क्या कार्रवाई की। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बस लम्हों का खेल था। इसके बाद वो दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब आफताब के लिए अपनी जगह खड़े रहना बिल्कुल मुमकिन ना रहा। वो दोनों जो भी थे और जिस अंदाज में भी जो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका मकसद इस सारी कार्रवाई से क्या है। वो अंधेरे में तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उन दोनों को ललकारा, कौन हो तुम लोग और क्या करते फिरते हो यहाँ पे। उसकी ललकार पर वो दोनों तेजी से पलटे। उसी वक्त उसने फिजा में फैली पेट्रोल की बू को तेजी से महसूस किया, जिससे उसे मालूम हो गया कि अब क्या होने वाला है और वो लोग क्या करने जा रहे हैं। रुक जाओ, चीखने के अंदाज में बोलता हुआ आफताब तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन ताखीर हो चुकी थी। उसके उन लोगों तक पहुंचने से कबल ही फिजा में एक शोला सा उभरा। ये नन्हा सा शोला माचिस की तीली का था, जिसने तीली जलाने वाले के हाथ से तेजी से नीचे का सफर तय किया और देखते ही देखते खौफनाक शोले भड़कने लगे। इन तमाम शोलों को भड़काने के जिम्मेदार लोगों ने वहां रुककर आफताब का मुकाबला करने के बजाय फुर्ती से राह फरार इख्तियार करने में अपनी आफियत समझी। लेकिन वो इस सारे मंजर को देखकर खुद भी बुरी तरह से भड़क उठा था। वो उन्हें भागने का मौका नहीं देना चाहता था। पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ वो उन लोगों की तरफ लपका और भागने वालों में से एक की गर्दन दबोच ली। अपने साथी को पकड़ा जाते देखकर दूसरा साथी, जो जरा आगे निकल गया था, वापस पलटा और आफताब के करीब आया। उसके पेट में जोरदार लात रसीद करते हुए अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त आफताब पर एक जुनून सवार था। वो लात से काबू में नहीं आ सकता था। पहले शख्स की गर्दन बाएं हाथ में जकड़े जकड़े उसने खुद से एक जोरदार मुक्का दूसरे शख्स की नाक पर मारा और फिर उसे संभलने का मौका बिल्कुल ना दिया। उस पर उसके साथी को इस अंदाज में दोबारा से धकेला कि दोनों के सर एक दूसरे से जाकर पूरी तरह से टकरा गए और दोनों के हलक से जोरदार चीखें निकलने लगी। मगर फिर वो दोनों संभल गए और खूनखार अंदाज में आफताब की तरफ लपके। उन्होंने आफताब को दोनों पहलुओं से इस तरह पकड़ा और उस पर हमलावर होते हुए उसके चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मुक्कों घूंसों की बारिश से वो एकदम नीचे बैठ गया और दोनों हाथों की कोहनियों को इस्तेमाल करते हुए उनके जिस्म के निचले हिस्से पर नाजुक मकामात पर जर्ब लगाई। उसके एकदम नीचे बैठ जाने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के मुक्कों की जद में आ गए। उस पर से ये जर्ब लगी तो मजीद बिलबिला उठे। मजीद नीचे बैठते हुए आफताब को उठने का मौका दिए बगैर उस पर पिल पड़े। कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? आफताब, क्या ये तुम हो? उसी वक्त फिजा में मुनीब की घबराई हुई आवाज सुनाई देने लगी। बहुत गहरी नींद में होने के बायस भी उसकी आंख जरा मुश्किल से खुलती थी और इर्द गिर्द की सूरत हाल को देखकर वो जरा घबरा गया था। आग के भड़कते शोलों ने सारी फिजा पर एक हैबत सी तारी कर दी थी और उन शोलों की रोशनी में 3 अफराद एक दूसरे से बरसरे पैकार नजर आते थे। उनमें से 2 के चेहरों पर स्याह नकाब डले हुए थे जिससे उनका मुंह छुपा हुआ था, जबकि तीसरे शख्स को वो गौर से पहचान सकता था। उन्होंने जिस तीसरे फर्द को अपनी जद पर ले लिया था वो उनके दरमियान घिरा होने की वजह से वाज़े तौर पर नजर नहीं आता था, लेकिन कपड़ों की वजह से मुनीब ने अंदाजा लगा लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ आफताब है। खबरदार, करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। लड़ने वालों में से एक ने अपना हाथ रोककर करीब आते हुए शख्स को यानी मुनीब को
वार्निंग देते हुए जेब में से रिवॉल्वर तेजी से निकाला और उसे मुनीब की तरफ लहराते हुए धमकी देने लगा। वो जहां था वहीं रुक गया। बस अब तुम भी सीधे हो जाओ, हमें खून खराबे का हुक्म नहीं, इसीलिए अब तक तुम्हें बख्शा हुआ था, लेकिन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होगा तुम लोगों के लिए। मुनीब को आसानी से पसपा होते देखकर उन्होंने अपना रिवॉल्वर मुस्तकिल तौर पर मुनीब की तरफ ही मोड़ दिया। आफताब को वो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि आफताब उनके लिए एक सख्त ढाल था। वो अब भी हाथ पैर चलाता हुआ अपने मुकाबिल को जख्म पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ अमल था। रिवॉल्वर की धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर उसने एक जोरदार पंच अपने हरीफ की तरफ दोबारा उछाला। उसकी इस हरकत पर रिवॉल्वर बरदार शख्स बुरी तरह तिलमिलाया और लात घुमाकर जोरदार हाथ उसकी कनपट्टी पर मारा। ये ज़र्ब खासी शदीद थी। आफताब उलटकर पीछे जा गिरा और फिर उठ न सका।